Hi everyone, again, welcome to all of you. So, let's start, don't waste time. 9.3 exercise going on, and mostly question from 1 and question number 12 as well as question number 17 already have done. But question number 18, some trick is there used in this question, like find the sum of n terms of the sequence 8 comma 8 8 comma 8 8 8 comma 8 8 8 8 and so on. Okay, so question number 18 of 9.3 exercise solution. Okay, sequence is given. Sequence is given. Sequence is given like 8 comma 8 8 comma 8 8 8 dash 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 and so on. अब तक हम लोग ने एपी और जीपी सीरीज को डिस्कस किया, बट दिस सीरीज इज नॉट एपी एज वेल एज नॉट जीपी. तो जब ये जीपी के फॉर्म में नहीं है तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो दिस सीक्वेंस कैन बी रिटन एज बिकॉज दिस सीरीज इज नॉट जीपी. दिस सीरीज is not a GP, so we can write as follows. So we can write as follows means what? Sn is equal to 8 plus 8 8 plus 8 8 8 dash 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 2 n terms. ओके, तो हमने इसको समीशन में शो कर दिया कॉमा को. अब आफ्टर दैट इस कंडीशंस को, क्योंकि 8 8 का समीशन या 8 8 का मल्टीपल में हम एक फॉर्मूला जनरेट नहीं कर पाएंगे, सो वी कैन राइट 8 अपॉन 9. 8 अपॉन 9 इन द ब्रैकेट. इस सीरीज को हमने कन्वर्ट कर दिया 9 प्लस 9 9 9 9 9 डैश 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 एन टर्म्स. ऐसा इसलिए किया कि जैसे इसमें से हम लोग 9 कॉमन लेंगे तो ये 111 का फॉर्म बन जाएगा. 9 इस न्यूमिनेटर से इस डिनोमिनेटर 9 को कैंसिल कर देगा, और जो आपके पास ब्रैकेट के बाहर 8 है, जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग इस सीरीज को एज इट इज फिर उसी तरह से लिख देंगे. बट ऐसा करने से हमारा कैलकुलेशन पार्ट क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है, क्योंकि इस 99 को हम 100 से कोरिलेट कर सकते हैं, 9 को 10 से कोरिलेट कर सकते हैं, 999 को 1000 से कोरिलेट कर सकते हैं. एंड नाउ अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 8 अपॉन 9, 9 को हमने क्या कर दिया 10 माइनस 1 इन अ ब्रैकेट, and 99 means 10 square minus 1 in a bracket and 10 cube minus 1 in a bracket dash 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 2 n terms. And now 8 upon 9 बिग ब्रैकेट में इसको बाहर रहने दीजिए. ये जो स्मॉल ब्रैकेट की 2 टर्म्स की क्वांटिटी है, इसको हम लोग और किस तरह से लिख सकते हैं? 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब डैश 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 n स्क्वायर डैश 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 n टर्म्स तक जाएगा, जहां तक भी चला जाए 2n टर्म्स. ओके, सिमिलरली अब यहां पर -1 रिमेन हो रहा है, तो मेंशन इन द ब्रैकेट एंड टेकिंग द माइनस साइन फ्रॉम सेकेंड टर्म ऑफ दिस ब्रैकेट. सो माइनस कॉमन जैसे लेंगे तो इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 डैश 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 2 n टर्म्स 2
n terms and big bracket close, and after that our requirement is fulfill. कैसे fulfill हो गई? This is the form of GP. GP series हो गई 10, 10 square, 10 cube and common difference is 10 because 10 square upon 10 cancel, common difference is common ratio is 10. So this sequence will be GP. So 8 upon 9 in the bracket sum of the nth term of GP is Sn is equal to a r to the power n minus 1 total upon r minus 1 when common ratio is greater than 1. common ratio is greater than 1. तो यहाँ common ratio की वैल्यू क्या है 10 है जो 1 से क्या है बिगर है, तो इसलिए हम लोग को ये फॉर्म रखना पड़ेगा. तो इस फॉर्म में here first term is 10, so 10 in the bracket r to the power n, then 10 to the power n minus 1 and total upon r minus 1 means 10 minus 1. Simply this is the minus sign, and in the second bracket 1 1 1 1 1 1 1 2 n terms, 1 1 1 2 n terms. तो ये कोई सीक्वेंस फाइंड नहीं हो पा रहा है ना एपी में ना जीपी में, सिर्फ क्या n टर्म्स तक है. तो हमने इसका टाइटल क्या यूज कर दिया, नंबर ऑफ टर्म्स n टर्म्स कर दिया. And after that 8 upon 9 in the bracket 10 in the bracket 10 to the power n minus 1 and 10 minus 1 means 9 and here also minus n. And now open the big bracket and multiply by 8 upon 9 respectively in the both terms. Like 8 tens are 80 in bracket 10 to the power n minus 1 जो साथ में है upon 9 nines are 81 minus 8 upon 9 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, so 8n upon 9. This is the answer. क्या कह रहा था? Find the sum of n terms. तो sum of n terms में क्या हुआ कि रियल में सम की ही कंडीशन लग रही है और जो आंसर बना है वो 2 टर्म्स में बन भी रहा है. अंडरस्टूड? So this is the solution of question number 18. Okay. And now next question. 18 is also easy. And question number 27. Question number 27 is important. Find the value of n so that this may be the geometric mean between a and b. Simply we know that what is the relation between geometric mean to a and b. If two numbers and two terms are given, then geometrical mean is equal to under root ab. आइए सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 27. ओके. तो if question number 27 question number 27 solution. We know that geometrical mean of A and B is under root AB. Condition is given. What given? Like geometrical mean is equal to under root AB. This is the standard form, but
ज्योमेट्रिकल मीन आपके पास गिवन जा रहा है उस दो नंबर का, लाइक a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 टोटल अपॉन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। तो इसमें हमको क्या निकालना है, पावर फॉर्म निकालना है। पावर किसमें है, n के फॉर्म में है। तो इस n की वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए क्लियरली राइट हैंड साइड में अंडर रूट है बट लेफ्ट हैंड साइड में कोई से पार्ट नहीं है, तो हमें करना क्या चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायर करेंगे सो a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 होल टू द पावर 2 टोटल अपॉन a to the power n plus b to the power 1 whole to the power 2। here in the right hand side स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट ए बी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपली ए बी में कन्वर्ट हो जाएगा। बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस इज द वन अंडरस्टूड इन द डिनोमिनेटर। तो बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो जैसे हम इसके ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम फॉर्मूले पे भी ओपन करते चलते हैं, लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मींस a n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a टू द पावर 2n प्लस 2 प्लस b स्क्वायर b टू द पावर 2n प्लस 2 प्लस 2ab 2 a टू द पावर n प्लस 1 b टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू मेंशन इन द ब्रैकेट ab। सो यहाँ की भी कंडीशन क्या हो जाएगी, a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर a टू द पावर 2n प्लस b स्क्वायर b टू द पावर 2n प्लस 2ab 2a टू द पावर n b टू द पावर n ब्रैकेट क्लोज। ओके, सिमिलरली अब क्या होगा, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ab से रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई होगा। तो जब ab से रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर 1 अंडरस्टूड है, b की पावर 1 अंडरस्टूड है। तो जैसे जब a के साथ इसका मल्टीपल करेंगे तो 2n प्लस 1 अटैच हो जाएगा और b आपके पास सेपरेटेड रहेगा। सिमिलरली b को जब इससे अटैच करेंगे तो b की पावर 2n प्लस 1 जनरेट हो जाएगा और a सेपरेटेड हो जाएगा। ओके, सो ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो a टू द पावर 2n प्लस 1 इंटू b, अगेन जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू b टू द पावर 2n प्लस 1 प्लस 2 सेपरेट रहेगा, a टू द पावर n प्लस 1 बन जाएगा, अगेन b टू द पावर n प्लस 1 बन जाएगा, क्योंकि a b को जब एक इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के ऊपर पावर 1 है, तो दोनों के ऊपर पावर 1 ऐड हो जाएगी। तो ये इसका सोल्यूशन हुआ। इसमें अभी हम लोगों ने कोई चेंजेस किया ही नहीं है, तो इसको हम लोगों ने एज इट इज नोट कर दिया, एज इट इज नोट कर दिया। अब क्या डिसाइड करते हैं, अब क्या डिसाइड करते हैं, फाइनली लिख लेते हैं। इसमें एक टर्म फाइनली कैंसिल हो जाएगा, हम लोग का क्वेश्चन सॉल्यूशन की लेंथ छोटी रहेगी। a टू द पावर 2n प्लस 2 प्लस b टू द पावर 2n प्लस 2 प्लस 2a टू द पावर n प्लस 1 इंटू b टू द पावर n प्लस 1। सो इन द लेफ्ट हैंड साइड their terms are be cancel out because terms are equal। and now अब क्या किया जाए, फाइनली a टू द पावर 2n प्लस 2 को हम लोग a से बिलोंग करा दें और b टू द पावर 2n प्लस 2 को हम लोग b से बिलोंग करा देते हैं। देखते हैं उसके बाद क्या होता है। सो a टू द पावर 2n प्लस 2 के नियर बाई हम क्या ले गए, जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा। ओके, माइनस a टू द पावर 2n प्लस 1 इंटू b इज इक्वल टू, इसको स्टॉप कर दिया, a b टू द पावर 2n प्लस 1 माइनस इसको ट्रांसफर करेंगे b टू द पावर 2n प्लस 2। अब यहाँ पर कॉमन की टेक्निक देखिए कि अब इसमें कॉमन जैसी चीजें क्या बनती है। तो कॉमन जैसी चीजों का बनने का मतलब यह है कि यहाँ पर ए बी का टर्म है, इसमें भी ए बी का टर्म है। ध्यान से देखिए, इसके ए के ऊपर कोई पावर नहीं है, बी के ऊपर भी कोई पावर नहीं है।
तो फाइनली इस टर्म में हमको b बचाना चाहिए और इस टर्म में a बचाना चाहिए। अगर इधर b बचेगा इधर a बचेगा तो रिलेशन क्या बनेगा, a माइनस b, a माइनस b। तो इस b के साथ जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको हम पूरा कॉमन ले लें, इस a के साथ जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको पूरा कॉमन ले लें। तो इस तरीके से जो ब्रैकेट में बचा हुआ पार्ट आएगा a माइनस दिस b, दिस a माइनस दिस b। ओके, तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि 2a की पावर n प्लस 1 और b 2 की पावर n प्लस 1 को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो जैसे a टू द पावर 2n प्लस 1 को हम कॉमन लेंगे तो कॉमन की मीनिंग क्या हो जाती है, डिवाइड करके लिखना इसमें। तो a टू द पावर 2n प्लस 2 में जब आप ये पार्ट डिवाइड करेंगे तो रेसिप्रोकल होके अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट आंसर माइनस 2n माइनस 1 ऊपर चला जाएगा। माइनस दिस पोर्शन कैन टेक आउट द कॉमन, सो रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा, सिर्फ b। अगेन यहाँ पर आपने b टू द पावर 2n प्लस 1 कॉमन लिया तो a रिमेन होगा, माइनस अगेन इसमें फिर डिवाइड करके लिखना पड़ेगा b की पावर 2n प्लस 2 में आपने क्या डिवाइड किया है ये, तो ये पावर में ऊपर आ जाएगी माइनस 2n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से आपके पास माइनस 2n पॉजिटिव 2n माइनस 2n कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 2 minus 1 means 1 only, तो a to the power 2n plus 1 in the bracket a minus 1 is equal to b to the power 2n plus 1 in the bracket a minus b। okay, so here अब a minus b को कैंसिल आउट करना है, तो कैंसिल आउट करने के लिए क्या कर देंगे इसको, a to the power 2n plus 1 upon b to the power 2n plus 1 is equal to a minus b upon this a minus b, a minus b, a minus b cancel out और 2n plus 1 पावर सेम है तो we can write a upon b whole to the power 2n plus 1 is equal to this is 1। तो 1 कहाँ पर आता है, किसी के भी बेस की पावर 0 कर देंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x to the power 0 means 1, तो हम इसको किस तरह से टैली करने के लिए क्या लिख दें, a by b to the power 0, यानी यहाँ पर जो 1 आ रहा था उस 1 को हमने क्या लिख दिया a by b to the power 0। तो बेस आर सेम, पावर इस टैली हो जाएगी, जब बेस आर सेम होगा तो पावर टैली हो जाएगी 2n plus 1 is equal to 0, then 2n is equal to minus 1, n is equal to minus 1 upon 2। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पर है, यहाँ पर एक टेक्निक यूज होनी है, फिर कॉमन के लिए आपको ये टेक्निक यूज करनी है। उसके बाद फाइनली जो कंडीशन बनेगी उसको 1 या x to the power 0 या a by b to the power 0 के फॉर्म में करके हम लोग पावर टैली कर लेते हैं, पावर से हमारी वैल्यूज आ जाती है n is equal to minus 1 by 2। ओके चिल्ड्रन, तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन अटेम्प्ट योरसेल्फ एट योर होम। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।